We are live now. Product lifecycle management. It is a process of managing the product and the product data during the entire life cycle, from the concept through design and manufacturing to service and disposal. Product lifecycle management integrates people, data, processes, and businesses system and provide a product information backbone for companies and their extended enterprises. Product lifecycle often miss their true potential and make projects unnecessarily costly. Not understanding how to optimize these investments can have a very long term effect on both the top and the bottom line. So, while companies that realize how to use product lifecycle management as a competitive weapon can capture significant market advantages. So, in this session, we give you insights into how to take an approach that address the true potential of a product lifecycle management. So, for this, we have a very prominent guest, Mr. Ratish Pandey. Hi, Ratish sir. Hi Devanshi. Thank you for having me here. Thank you so much, sir. Stage is over to you, sir. Thank you, Devanshi. Really appreciate this opportunity, and those of you who are on the call, who are listening to us. Devanshi, a quick question: is this a English, Hindi, and English, or is it English only? Sir, English. English. Okay, Yeah. good. Thank you so much for that clarification. So, जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सबको नमस्कार, and really happy to be here and talk about product life cycle management. अब ये जो product life cycle management है, it sort of sounds as a very complex kind of a thing. ये क्या बात कर रहे हैं? मगर what we are trying to do is, and as Devanshi also mentioned in her opening statement, what we are trying to put together is how do products and what is the life journey of a product. Now think of any machine that you buy, right? Think of a car that you buy. When you buy a car, for some years it actually runs very well, and then suddenly the decline happens, and then you need to either fix it or whatever. And basically, and the reason why I gave you that example of a car is just to give you and put it in a mind that when companies think of products, they think of products as a system, and they look at it in the complete holistic fashion. It is not just about that there is this product that they're wanting to introduce in the marketplace. So what we will do is understand a little bit what is the journey, what journey does the product take on its own, and from a corporate side, how do companies look at the product's journey and how does it impact their decision making. So दोनों चीजें देखेंगे हम, product in it on its own, and then how do companies look at it. So basically, as they say, product life cycle, and wonderful definition here, which sort of will give you some sense. Product life cycle is the amount of time a product goes into being introduced into the market until it is taken off the shelves. Now, taken off the shelves is a very colloquial English word जिसे हम कहते हैं, मगर basically कहाँ से इंट्रोड्यूस किया हमने और कहाँ पे जाके अब हमने प्रोडक्ट को कहा कि बस थैंक यू वेरी मच, आपकी यूटिलिटी खत्म हो गई कंपनी के लिए. सो बेसिकली वो पूरी जर्नी जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का रूप लेती है, एंड कंपनीज लुक एट इट वेरी स्ट्रांगली. खास तौर से वो कंपनीज जो ज़्यादातर रिसर्च में इन्वेस्ट करती हैं और नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनके लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लानिंग होती है. क्योंकि आप लोग मतलब जो ज़्यादातर कंपनियां जो रिसर्च में इन्वेस्ट करती हैं, उनके लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजर्स हु मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट बहुत एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हर साल की प्लानिंग में. सो आगे चलते हैं थोड़ा.
और देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जर्नी में। तो बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, 4 स्टेज। अब कुछ लोग 4 कहते हैं, कुछ लोग 5 कहते हैं, बट मोटा मोटा 4 समझ लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट या रिसर्च में, तो वो जो शुरू का रिसर्च और डेवलपमेंट है, कुछ कंपनियां उसे कहती हैं कि दैट इज अ सेपरेट स्टेज। But by and large, most economists believe that there are 4 stages, right? Development of the product and market introduction. The second is market growth, कैसे मार्केट बढ़ाएं उस प्रोडक्ट का। और फिर हो जाता है मार्केट मैच्योरिटी, और फिर एक आता है मार्केट डिक्लाइन। अब इसमें जब हम बात करते हैं, तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड नॉट ओनली कि प्रोडक्ट की जर्नी क्या है, कि हमने कहाँ इंट्रोड्यूस किया, फिर वो ग्रोथ हुई धीरे धीरे, और फिर एक बहुत अच्छे से बिक रहा है प्रोडक्ट, और फिर सडनली इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। और आज की जो टॉक है उसमें मैं कुछ एग्जांपल्स भी लेके आया हूँ, और जो कल हुआ ग्लोबल वर्ल्ड में, उसके बारे में बात करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कल, जो टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी फर्म है उसमें जो हुआ, एंड दे आर हिट एक्चुअली बाय देयर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल challenges. So exactly we will look at all those aspects, and I have some live examples also, so that you get a sense of what and how things get built up. So you also have to understand product life cycle from an economist point of view, and the concept of competition and how competition catches up when you, and होता ये उसमें कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा बिक रहा है और बहुत अच्छी चीज उन्होंने बनाई है, तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर ये होता है कि और कंपनियां भी वही चीज बनाने लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट बिक रहा है, तो मैं भी वही बनाऊं जिससे कि मुझे भी कुछ फायदा हो। और उसमें जो मार्केट लीडर्स होते हैं, जो कंपनीज जिन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया होता है प्रोडक्ट, वो मार्केट लीडर्स होते हैं, तो कुछ साल तो उन्हें बेनिफिट मिलता है, और उसके बाद जैसे ही कंपटीशन कैचअप होता है, तो जो प्रोडक्ट की यूनिकनेस है ना, वो इतने सारे बन जाते हैं प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस खत्म होने लगती है, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग अ यूनिक प्रोडक्ट इट merely becomes a commodity. सो जो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ये पूरा उसी from an economist point of view, that is the other thing that they look at, कि where is the uniqueness of the product, and where once it starts declining, it actually has reached most often the case of merely being a commodity. And there are some very significant examples, especially in the FMCG space, and we'll talk about those too. So आगे चलते हैं। So now I'll take you through all the 4 stages, और देखेंगे कि क्या इंटरेस्टिंग है, क्या क्या होता है। सो अब ये देखिए, ग्राफ बहुत ही अच्छा सिंपल ग्राफ है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे, हाउ डज इट गो, एंड हाउ डज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल गो अलॉन्ग। सो जब इंट्रोडक्शन होता है, तो ऑब्वियसली रिसर्च और इंट्रोडक्शन, या जो भी कह लें, इनोवेशन और इंट्रोडक्शन, मार्केट डेवलपमेंट जो है, वो इनिशियल पीरियड कहलाता है। इसमें जो है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन होती है। अब नए नई चीज़ आप कुछ भी ला रहे हैं मार्केट में, कोई भी चीज़ नई पेश कर रहे हैं मार्केट में, आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, आपको कुछ नया करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा। और ईच स्टेज को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में, जिससे कि आपको सेंस रहे कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं। और अगर आप स्टार्टअप हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि मैं किस स्टेज पे हूँ, मेरा प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, या अगर मैं मी टू या एक और प्रोडक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, वो ऑलरेडी हैं, तो मैं किस स्टेज पे एंटर कर रहा हूँ मार्केट में उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में, एंड अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना चाहिए डिफरेंट। तो सबसे पहला जो स्टेज है, वो है मार्केट इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट। अच्छा, इस स्टेज पे मैं ये कह दूं कि जैसे आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सवाल आएंगे आप लोगों के दिमाग में, तो please feel free to write comments, ask questions. I'm more than happy to answer the questions midway during the presentation,
or I will be more than happy also to take questions towards the end. But in either case, as questions come to your mind, rather than holding them in your mind, just you can type it on the comment section, and I will get to read those questions as you type them, and I will take them either along the presentation or towards the end. More than happy to talk to you on those questions also. So let's move on. मार्केट इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट जो है ना वो पहली स्टेज। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली अब आप नई चीज ला रहे हैं, नया प्रोडक्ट है, तो वाजिब है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। किस चीज में? एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग कैंपेन्स में, पब्लिक रिलेशंस में, क्योंकि आपको बताना है जो आपके कंज्यूमर्स हैं कि भाई मेरे पास ये चीज नहीं है, समथिंग डिफरेंट, आई हैव समथिंग डिफरेंट विच नोबडी एल्स हैज। ठीक है ना? अब वो जब आप समथिंग डिफरेंट की बात करेंगे, उसमें बताने से पहले आपको एक चीज और करनी है। आपको ये चीज पता करनी है कि कॉम्पिटिटर्स हैं भी इस प्रोडक्ट के कि नहीं, और अगर हैं तो आपका प्रोडक्ट कंपटीशन से कैसे अलग है, जिसे कहते हैं हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अगर आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लेंगे तो सबसे बड़ी चीज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में ये होती है कि यू आर एबल टू डिफरेंशिएट एंड क्रिएट अ निश। जो जो आपके प्रोडक्ट में अलग चीज है वो आप समझा पाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि जो चीज अलग है उसको अगर आप समझाएंगे तो आपका प्रोडक्ट के बारे में लोग ज्यादा अच्छे से जानेंगे। क्योंकि अगर आप यही बताएंगे कि कॉम्पिटिटर ए बी सी जो कर रहे हैं वो मैं भी कर रहा हूं, तो उसमें फिर आपके प्रोडक्ट की बिक्री इतनी अच्छी नहीं होगी। तो जो आपने डेवलपमेंट करी है प्रोडक्ट में, जो आपने रिसर्च करी है और उसमें जो नई चीज लेके आए हैं, उसको आप एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू आपको उसे सामने लाना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अब इस स्टेज पे 4-5-6 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं और कंपनीज को भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहला तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नई चीज हम ला रहे हैं तो उसकी सेल्स तो अचानक तो खूब बिक्री होनी जाएगी। कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, आप कोई भी सर्विस ले लीजिए, इट कैन नॉट बी कि आपके पास ऐसा कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो पहले दिन लॉन्च करने में आपकी बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं होता कभी भी। तो जो लो और स्लो सेल्स वाला पीरियड है वो होता है ये जो फर्स्ट फेज होती है ग्रोथ वाली। अब इसमें एक और चीज ये है कि क्योंकि कंपनीज ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में खर्चा किया होता है, क्योंकि प्रोडक्ट नया होता है, तो most often companies and most corporates believe in pricing the product slightly high because they have to recover the cost of the product development. So most often product का price high होता है। On the contrary, जो कंपनी, अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी इज मेकिंग सुपर प्रॉफिट्स, ऐसा नहीं होता हाई प्राइस के कारण, क्योंकि कंपनी के खर्चे उसी हिसाब से ज्यादा बढ़े हुए होते हैं। क्योंकि आपको जो है प्रमोशनल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, बहुत लोगों को बताना होता है। अब उसमें आप डिपेंडिंग ऑन जो प्रोडक्ट है आपका, जो भी मीडियम लें एडवर्टाइजिंग का या डिजिटल जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं उनका मदद लें, जो भी करें, आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा। यू विल हैव टू स्पेंड हेविली ऑन प्रमोशनल एक्सपेंसेस। देन कम्स the lack of knowledge from whose side? From the consumer side. So therefore that knowledge about telling the consumers about what is different, why should they buy your products, why should they consume your services, ये एक नई चीज हो जाती है। अब आप देखिए ये जो कंपनीज हैं, उबर हैं या ओला है, ये एक दिन में इनकी सर्विसेज नहीं इतनी बड़ी हो गई। they have taken time to build up. They started with one city, second city, third city. And then when they moved in, they paid heavy promotional expenses, right? Those of you who were early users of Ola, Uber, I'm sure you enjoyed the cashbacks that you used to get when you used to book an Ola or an Uber, right?
So was all that cashback, or even Zomato and Swiggy, right? There were cashbacks. We were enjoying those cashbacks. अरे यार 50 रुपए मिले, अरे 100 रुपए मिले, because those were the cost of promotional expenses that the companies were putting in, and that is why they were able to convert you to be their consumer, in the sense that you became a regular user of their products and services. अब because आप इतना खर्चा कर रहे हो, consumers don't know about your products or the difference or the differential product that you have in the market. There are also, and you've spent a lot of money on advertising and promotion and everything else that goes. This naturally leads to low profits for the corporates, for the companies who have brought this product and are in growth phase. The other thing that happens, and which most often most companies do it, and as business coaches and as mentors also, when we mentor startups, and and you find startup founders having great vision. सर ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक साथ हम 10 चीजें, 10 प्रोडक्ट शुरू कर रहे हैं. और मैं कहता हूं उनसे, प्लीज प्लीज प्लीज, टाइम आउट. व्हाट डू वी नीड टू डू? लेट्स फर्स्ट डू अ पीओसी. एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट जो आपको लगता है बहुत अच्छे चलेंगे, लेट अस फर्स्ट लॉन्च दोस. So what that does is you are able to test out the market, and that is why you are in the development and growth phase, where market development and growth is happening, where you test your POC, test your proof of concept कि हाँ जो प्रोडक्ट और जो नई चीज मैं लाया हूँ वो सच में डिफरेंट. सो ये चीज जो है ना, इसीलिए at this phase normally, although companies may have, and as startup founders, you may have brilliant ideas, but the best, and it is always advised, to start with 1 or 2 strong products that you believe will differentiate yourself, and then open up to other categories and open other product lines. So that is why at this stage, normally narrow product lines, 1 or 2 is what most companies go with, कि चलो 2 से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं. So let's go ahead, Devanshi. So then once we have done the market development, the introduction, then comes the growth phase, right? अब क्या हुआ? अब बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने बहुत सारी प्रमोशनल एक्सपेंसेस कर दी, मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी, कंज्यूमर्स को बताया क्या डिफरेंस है, कंज्यूमर्स हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट एज यूजुअल. व्हेन द अप्रिसिएशन कम्स, आज की तारीख में इतना अच्छा प्रोसेस है, especially if you are selling consumer products or products which can be sold on e-commerce. Getting customer reviews becomes a big thing early on, because if the customers are happy with their reviews, they will start talking about it. So especially when you are in that development phase, getting those positive reviews because your product is so good, about your products and services, makes a huge difference. It makes a phenomenal difference in terms of what you can do. So basically, the growth stage is characterized by growing demand, an increase in production, and expansion in the product availability. Uh, let's keep going with the mobility space. I talked about cars, I talked about Ola, Uber. So Ola, Uber ने क्या किया? पहले उन्होंने 1 सिटी, 2 सिटी, 3 सिटी, फिर उन्होंने कहा अच्छा जी अब हम 10 सिटी पे फोकस करेंगे. So slowly you start expanding, and once you start expanding, the characteristics of the growth phase come into the product, right? There's rapid increase in sales. You've put the investment, you've got consumers hooked on. अब consumers की आदत हो गई कि यार मैं कहाँ ढूंढूं कि पास वाला रेस्टोरेंट कौन सा है, उसे फोन करके उसे ऑर्डर करूं. इससे अच्छा तो मैं जोमेटो का ऐप खोलूं या स्विगी का ऐप खोलूं, मुझे दिख गया जो चीज़ मैं खाना चाहूँ तो मैंने क्लिक किया और its delivery is on its way, right? So think of it. पहले क्या होता था कि डोमिनोज बस, एंड डोमिनोज तो आजकल बहुत मतलब मोस्ट ऑफन डिस्कशन कम्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स. सो पहले शुरू में डोमिनोज वाज रियली पुशिंग द 1-800 number, right? You had the 1-800 number, Domino's, and you could call, and Domino's used to come in 30 minutes. Great. Today,
Who remembers the Domino's 1-800 number? Nobody does, because Zomato, Swiggy is there, right? So how the shift has happened, and exactly the point, the rapid increase in sales happens because the consumers get used to it, your products and services. And number two, the bigger pieces, if you have the right product for their needs, then the frequent use starts happening. And that is where the difference happens from the development phase into that, I would say, the second gear and the third gear phase starts happening, where you start accelerating. So this is where, because एक और चीज समझ लीजिए, जो एक नया एग्जांपल आ जाता है कि जैसे ही ज्यादा कंज्यूमर्स इंटरैक्ट करने लगते हैं, तो कंज्यूमर्स स्टार्ट गिविंग यू फीडबैक. नाउ feedback comes either from the consumers or from your development teams, and they say, okay, now let us improve this product, because we have proved that yes, this product is a successful product. Now what improvements we can make. अब इसको आप, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं who keep looking for this information back from the consumers. आप जो मतलब आज की तारीख में गूगल को देख लीजिए. आई थिंक जितने भी लोग हैं इस समय, ज़्यादातर, आई वुड से 90% जो हु आर ऑन दिस कॉल राइट नाउ, definitely would have a Gmail account. But see how Gmail has transformed itself from 5 years back or 10 years back to today, what it is, right? So Gmail also, despite being such a strong brand in itself, such a strong usage, they still continue to do product improvement. So that is the next phase. Growth always connects to product improvement, otherwise your growth will stutter, stop, आप रुक जाओगे. दूसरा क्या होता है कि जब आपने प्रमोशन कर दिया, जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, काफ़ी पैसे डाल दिए मार्केट में, कंज्यूमर्स आपके पास आ गए, आपका जो प्रोडक्ट और वो पहचानने लगे लोग, नई चीज़ है, तो अब जो है ना, इकोनॉमिस्ट कम इनटू प्ले एंड दे से देयर इज परफेक्ट कंपटीशन, राइट? सो इमीडिएटली other companies start following you. अरे यार, this company has a brilliant product, we can copy. There's still scope for my product also to come in. Similar product, I can also come in. I can tag behind this company which has already created the market and add and sell my products, right? And this is where, and you will see innumerable companies who do this. So the increase in competition comes into play. Now, with the increase in sales and product improvement, what happens? Also, the increase in sales actually helps us drive our profitability, and there's increase in profits also. The other thing, आप लोगों ने सबको पता होगा कि देर इज इकोनॉमी ऑफ स्केल. अब जो आप पहले 10 चीज बना रहे थे शुरू में, या 100 बना रहे थे, 1000 बना रहे थे, या 10,000 बना रहे थे, ग्रोथ फेज में अगर आप 1 लाख बना रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो आप खर्चा जो कर रहे हो उस चीज को बनाने के लिए, या अगर आपके पास सर्विस है, उस सर्विस को डिलीवर करने के लिए आपका खर्चा कम होगा. तो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो, at times companies drop the price and are able to actually still get greater sales. So there's a reduction in price. Reduction in price also comes because of the competition. Because most often, agar you are the market leader and there are 5 other companies following you, the other 5 companies would price their products slightly lower than yours, because they don't want to spend, वो उतना खर्चा नहीं करना चाहते प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग और एवरीथिंग और बाकी सारी चीज़ों में टू गेट कंज्यूमर्स. वो सिर्फ इस चीज़ पे जी रहे हैं कि आप कर रहे हो खर्चा, और मैं जो है पीछे से आके जो लोअर प्राइस प्रोडक्ट ऑफर करके मैं कंज्यूमर को अपने पास ले आऊं. इसलिए प्राइस रिडक्शन भी होता है. और तीसरी चीज़ हो जाती है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. क्योंकि इतनी तेजी से आप सेल कर रहे होते हो, तो या तो जो आपकी करंट सेल्स चैनल या सेल्स स्ट्रैटेजी होती है, वो उससे आपकी
डिमांड नहीं मीट हो रही होती। तो इसलिए आप यू लुक एट ऑल्टरनेटिव सेल्स चैनल्स की। अभी तो आप डायरेक्टली सेल कर रहे थे, अब आपने कहा कि भाई अरे मेरा प्रोडक्ट तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी बिक सकता है, तो मेरे कस्टमर्स, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मिल जाएंगे मुझे। तो चलो अब मैं, नाउ दैट आई एम पास्ट माई डेवलपमेंट एंड द इंट्रोडक्शन फेज, अब ग्रोथ फेज में मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी पहुंच जाता हूँ। So you look at different distribution channels also. That is the, and these are characteristics that really come across very strongly. Let's go ahead. Now, what's the third stage? अब थर्ड स्टेज में क्या है कि गाड़ी जो है टॉप गियर में आ गई, फोर्थ गियर में आ गई गाड़ी। You've seen increase in sales, you've seen a rapid increase in sales as well as consequent increase in profit. बिक्री भी अच्छी हुई, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। अब मैं क्या करूं? अब कंपनी क्या है, कंपनी जो है ना एकदम डिमांड साइकिल इतना अच्छा कर लिया है कि एकदम पीक पे है। हुँ? और उसमें क्या होता है कि जब एक डिमांड साइकिल पीक पे आ जाता है, तब एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज जो है ना, वो भी आप जितना ढोल बजा लो, कंज्यूमर उतने ही हैं और बिक्री उतनी ही रहती है। तो आप कंपनी सोचने लगती हैं कि अरे भाई क्या हो रहा है, मैं तो हर साल पिछले 3 साल से मैं 10% 15% प्रमोशनल एक्सपेंसेस एडवर्टाइजिंग ज़्यादा कर रहा हूँ, मगर कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा सेल्स में। वो इसलिए नहीं हो रहा कि ऑलरेडी रीच्ड द प्रोडक्ट हैज़ रीच्ड द मैच्योरिटी स्टेज। We can move to the next slide. Now, I'll slightly speed up because I think I'm just looking at the time. We have a fair bunch of more information to share. तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, जिससे कि अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो मैं वो सवालों के भी जवाब दे पाऊँ। सो अब मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि जो सेल इंक्रीज है, वो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सेल कम होना लगता है। ऐसा नहीं कि सेल बढ़ नहीं रही, सेल बढ़ेगी, मगर जो पहले मान लीजिए पिछले 3 साल में आपकी 20 या 30% सेल इंक्रीज हो रही थी ईयर ऑन ईयर, सडनली यू विल सी कि अरे यार इस साल तो 10% रह गई, उससे अगले साल 8% रह गई, उससे अगले साल सेल बढ़ी मगर सिर्फ 6% बढ़ी। तो एब्सोल्यूट नंबर में सेल बढ़ रही है, मगर रेट ऑफ इंक्रीज जो है सेल का वो स्लो डाउन हो जाएगा। अब कंपनी फिर ये कहती है यार कि अरे यार अब इतना ज्यादा इस चीज के पीछे ना पड़े, कुछ लेट्स सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज आवर एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एक्सपेंसेस। एंड देन at maturity stage also, what happens is uniform and product lower prices, और prices कम हो जाते हैं, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, कंपटीशन कैचअप कर गया, तो सब लोग वही चीज ऑफर कर रहे हैं शुरू, ऑलमोस्ट देयर इज वेरी लिटिल टू डिफरेंशिएट बिटवीन product of company A, service of company A, or product of company B, or service of company B. And once that happens, what do companies do? Then becomes a war at the market level, at go to market. उसमें ये हो जाता है कि डीलर सपोर्ट। अब मान लीजिए मैं एफएमसीजी कंपनी और दूसरी भी एफएमसीजी कंपनी, तो मैं जाके डीलर से कहता हूँ यार कि अगर आप मेरे ना ये 10 डब्बे और ले लो तो मैं आपको 1 डब्बा फ्री दूंगा। तो मैंने डीलर सपोर्ट दे दी। अब कंपनी बी को पता चलेगा तो वो भी ये शुरू कर देंगे। तो इसलिए एक डीलर सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं कि लेट अस सपोर्ट, हाउ डू वी सपोर्ट दी एट द ग्राउंड लेवल जहाँ पे बिक्री हो रही है, to ensure that we are able to sell and continue to sell despite the fact that sales are increasing at lower rates. अब इस सब में जो खर्चा कर रहे हैं हम टू सपोर्ट एंड कंटिन्यू टू बोल्स्टर माई सेल, कि सेल किसी तरह तो बढ़ती रहे, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगता है उस प्रोडक्ट को लेके। एक और चीज जो कंपनी करती है वो करती है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। अब मतलब जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें दे सकता हूं कि आप कोई भी लेट अस से वॉशिंग पाउडर ले लीजिए। अब इतना मैच्योर प्रोडक्ट है वो, हाउ डू कंपनीज ट्राई एंड मेक अ डिफरेंशियल product modification, or they will say new surf or new Ariel or new Henko, whatever. And now with product surf with lemon or surf with that, and why they are trying to do it?
They are trying to do it because they want product modification, नई चीज कुछ जिससे कि मैं ये कह सकूं कि हाँ भाई कंज्यूमर्स कम बैक टू मी, स्टे विद मी, कीप दैट स्टिकीनेस। अरे यार ये तो सर्फ ने नई चीज निकाल दी, मैं तो बड़े दिनों से नॉर्मल सर्फ यूज कर रहा था, तो नई चीज आ गई, लेट मी गो बैक टू सर्फ। So now these are products which have really matured over time. How do, and this is where the challenge for FMCG companies, how do they continue to maintain their products right in front of the consumer so that consumer stickiness remains? आगे चलें। अब क्या हुआ कि गाड़ी फोर्थ स्टेज पे आ गई, प्रोडक्ट को हमने खूब उस पे बहुत सारा ढोल बजा दिया कि भाई इतना अच्छा प्रोडक्ट, सब कुछ हो गया, हमने ग्रोथ भी देख ली, मेच्योरिटी भी देख ली। अब क्या होता है कि एक स्टेज पे आके प्रोडक्ट जो है वो कहता है कि बस हो गया मेरा, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एंड दिस हैपेंस, एंड दिस इज द स्टेज वेयर most often product becomes that uniqueness goes away, you you just merely become a commodity. So product takes on increased competition from other companies because they've caught up, and lower prices. And actually, if you don't bolster it with increased advertising spends, it market share कम होने लगता है, प्रोडक्ट नीचे जाने लगता है। अब उसमें कंपनीज क्या करती हैं, दैट इज वेयर द, जो मैंने शुरू में कहा कि एक तो हो गया प्रोडक्ट, और कॉर्पोरेट डिसीजन कैसे होता है। अब कॉर्पोरेट डिसीजन ये होगा कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का है कि नहीं, और अगर है तो कंपनी कहेगी चलो इसमें और लगाते हैं अभी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज मार्केट शेयर। बट अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाती है जहां पे कंपनी को मेजर करना पड़ता है कि भाई कितनी सेल बढ़ रही है और क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है उस प्रोडक्ट कैटेगरी से, एंड बेसिस दैट दे टेक द डिसीजन कि भाई इसको चलो अब बंद करना है, या वी स्टिल कंटिन्यू टू पुश इट, बट दिस एड्स सिग्निफिकेंट कॉस्ट। नेक्स्ट स्लाइड। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिक्लाइन वाले स्टेज में? ऑब्वियसली जिस जो हमारी ग्रोथ स्टेज पे इंक्रीज थी वो जाके ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं सेल्स में। तो जो रैपिड डिक्रीज इन सेल्स बहुत नेचुरल है। प्राइस आप कम करने लगते हो तो उसमें यही होता है कि अरे यार अब अगर कमोडिटी लेवल पे आ गए हम, तो मैं जो कंपटीशन सस्ते में बेच रहा है मैं उसके साथ क्यों नहीं, वाई शुड आई नॉट बी दिस प्राइस ऑफ द कंपटीशन। सो मैं कहता हूँ चलो यार प्राइस कम कर देते हैं, क्या पता थोड़ा मार्केट शेयर बढ़ जाए। सो आई फर्दर डिक्रीज द प्राइस। कॉर्पोरेट में अगर वो प्रोडक्ट कैटेगरी एंड एवरी कॉर्पोरेट, सब जितने कॉर्पोरेट्स हैं इतनी अच्छी उनकी डेटा कलेक्शन और एनालिसिस होती है कि दे आर एबल टू डिटरमिन कि भाई आज की तारीख में ये प्रोडक्ट है मेरा, मान लीजिए सर्फ ही ले लें, तो सर्फ में मेरी क्या खर्चे हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या सेल इंक्रीज है और क्या प्रॉफिट निकल रहा है, और अगर क्या प्रमोशन एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, तो बेस्ड ऑन दैट वो जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर P&L, एंड देयरफॉर दे लुक एट इट कि हाँ ये बात बन रही है कि नहीं बन रही है। बेस्ड ऑन दैट अगर सेल्स उतनी इंक्रीज नहीं हो रही तो प्रमोशनल भी खर्चे थोड़े कम कर दिए जाते हैं कब। और साथ में अगर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है तो सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी में ही होता है, और कुछ जो एग्जांपल्स हैं टुवर्ड्स द एंड जो मैं बात करूंगा, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में फिर बिल्कुल कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कहती हैं कि भाई बंद कर दो, ये हम वी नॉट एबल टू सस्टेन। बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हम सबके सामने बहुत साल पहले एक जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बेंचमार्क होता था कि भाई अगर आपको कॉर्पोरेट ईमेल चाहिए तो सेफेस्ट प्रोडक्ट वाज अ ब्लैकबेरी। आज की तारीख में ब्लैकबेरी कुछ कुछ महीने पहले ही ब्लैकबेरी कंपनी बंद हो गई। अब क्यों बंद हो गई? क्योंकि बिल्कुल वही, दे वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस, दे केम अप विद अ फिनोमिनल प्रोडक्ट वेयर पीपल कुड सी देयर enterprise email
on their phones, on their Blackberries, as they call it, used to be called. And इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट हुआ क्योंकि BlackBerry promised utmost safety, and that was their biggest, you know, I would say the unique feature that and the ability to push emails to a handheld device so that employees could be connected 24/7, and that is what really made the difference for BlackBerry. But what happened? Other companies, other products caught up. So BlackBerry went through that phenomenal growth phase, reached a maturity, and then they tried to make चेंज थिंग्स राइट. तो ब्लैकबेरी ने कहा अरे यार मैं अपना ओएस हटा के मेंटेनिंग दिस ओएस becomes is very costly, we can't sustain it with lower sales as they went into decline. Let's jump to they actually went on to the Windows platform and everything else happened, but they just couldn't survive. So टेक्नोलॉजी कंपनीज में ये हो जाता है कि कभी कभी सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन वर्क भी हो जाता है. मतलब कंपनीज कहती हैं भाई इस प्रोडक्ट को बंद करो, इसको हम नहीं सपोर्ट कर सकते. Next slide. So basically we looked at the 4 phases, right? Market development, growth, maturity and decline. अब क्या फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, वो देख लेते हैं थोड़ा सा. तो एक तो होता है रेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज. टेक्नोलॉजी बिकम्स अ बिग चेंज, बिग फैक्टर इन स्पेशली आज की तारीख में जो हर चीज में टेक्नोलॉजी है. अगर हम कुछ भी चीज देख लें, everybody somewhere or the other technology is impacting it, and the speed at which technology changes are coming, if companies are not smart enough, if you as a startup founder are not smart enough to actually think of what is coming in the future, and आप अगर अभी क्या सोच रहे हो सिर्फ कि अरे दिस इज सो ग्रेट, मगर अगर आप वेब 3.0 का नहीं सोच रहे, आप ये नहीं सोच रहे कि आगे क्या आने वाला है, तो आप जो है वो मिस कर जाओगे बोट. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि when you are thinking of your product development, introduction and the product life cycle, also see what are the technology changes that are coming going forward, let's say 12 महीने 24 महीने 36 महीने, बिकॉज उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा. एक एग्जाम्पल देता हूँ. जो भारत में एक टाइम पे 2 टेक्नोलॉजीज आई फोन के लिए, CDMA और GSM. अब ये चीज जो लोग CDMA लाए और जिन लोगों ने CDMA प्लेटफॉर्म्स चुने, what they forgot is कि आगे क्या आने वाला है एंड क्या which technology is more stable. तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर दी CDMA में, but they missed the boat because GSM was a far more stable platform and that is what took off. So a lot of investments happened in CDMA technology and they failed and those companies shut down. Then is the rate of market acceptance. Rate of market acceptance ये होता है कि एक बार आपने मार्केट डेवलपमेंट और इंट्रोडक्शन कर दी तो किस स्पीड से आपकी ग्रोथ, दैट एक्चुअली डिफाइंस कि कितनी तेजी से कंज्यूमर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस को. द अदर इज ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटर्स एंट्री. मैंने पिछले आधे घंटे में जो बताया कि जो जो when economists look at it and they say that there's perfect competition always, it is because as soon as any company starts making super profits, the competitors start looking at it and start nipping at, और वो जो है प्रोडक्ट्स बनाने लगेंगे उस कंपनी के जैसे टू एंश्योर कि वो जो प्रॉफिट बन रहा है उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें मिल जाए. तो कॉम्पिटिटर एंट्री बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है. फिर आ गया इकोनॉमिक और मैनेजरियल फोर्सेस. फिर आ गया कि कंपनी के रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी देर तक आप उस प्रोडक्ट को मैच्योर फेज पे रख सकते हो, दैट इज द रिस्क. एंड देन गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे आज की तारीख में आप आई डोंट नो आप लोगों ने किसी ने सुना कि नहीं, बट करीब 15 दिन पहले US गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम 5G इंट्रोड्यूस कर रहे हैं.
अब 5G इंट्रोड्यूस करने लगे तो जितनी भी एयरप्लेन्स उड़ रहे थे यूएस में, उन्होंने कहा कि अगर आप 5G इंट्रोड्यूस करोगे तो हमें बहुत सारे प्लेन्स अपने चलाने बंद करने पड़ेंगे, बिकॉज वी डोंट सी कंपैटिबिलिटी। और उसके कारण मान लीजिए कि अगर कल इंट्रोड्यूस करनी थी टेक्नोलॉजी और ट्रांजिशन होना था, तो फाइनली यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि नहीं, अभी हम रुक जाएंगे जब तक कि वी आर श्योर कि एविएशन इंडस्ट्री इज रेडी टू टेक ऑन। सो these are simple examples जहाँ पे government policies come into play, and finally the president of the US said no, let's wait for introducing 5G. So similarly, I think how you plan, how government policies come into play also becomes a very important factor in planning your product life cycle. Next slide. अब ये जो है ये एकदम कॉर्पोरेट खेल है कि आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, उससे आप अच्छी बिक्री हो रही है, अच्छे पैसे बन रहे हैं, बॉटम लाइन अच्छी है, तो हाउ डू यू एक्सटेंड दैट प्रोडक्ट साइकिल? दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस, एंड दैट इज वेयर लॉट ऑफ कंपनीज, और जो आप स्मार्ट जो को फाउंडर्स या फाउंडर्स जो सुन रहे हैं आज, ये आपको भी ध्यान रखना है कि, और आजकल तो मतलब कोई भी डिस्कशन नहीं होती जब तक आप शार्क टैंक की बात ना कर लो। तो जितने भी अगर आप लोगों ने देखे शार्क टैंक एपिसोड, सबसे पहले एक सवाल सबसे पूछा जाता है कि भाई आपकी विजन क्या है, और विजन में क्या क्या पूछा जा रहा है उनसे, ये पूछा जा रहा है कि भाई आज तो ये प्रोडक्ट है एक, अगले 6 महीने में, 12 महीने में, 18 महीने में और क्या क्या प्रोडक्ट ला रहे हो आप, या क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हो इस प्रोडक्ट में, जिससे कि आपकी प्रोडक्ट यूनिकनेस बनी रहे। ठीक है ना? दिस 12 महीने, 6 महीने, 18 महीने में जो आप नई चीज कर रहे हो, दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग एट, हाउ आर यू गोइंग टू एक्सटेंड योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब अगर आप 20 साल पहले देखें और आज की कंपनीज देखें, तो 20 साल पहले कंपनीज थी, उनके पास एक या दो प्रोडक्ट होते थे, एंड दे वर एबल टू सेल ब्रिलियंटली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। बट आज की तारीख में कंज्यूमर्स वांट चेंज, कंज्यूमर्स वांट न्यू थिंग्स, एंड दे गेट बोर्ड विद व्हाट दे आर होल्डिंग इन देयर हैंड्स, राइट? पहले होता था कि एप्पल का सिर्फ साल में एक इवेंट होता था, सितंबर में। अब क्या हो गया कि एप्पल इवेंट 2 करता है, साथ में नए प्रोडक्ट्स एप्पल के इतने सारे आते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अगर आप ऐसे भी सोचें तो एप्पल सिर्फ एक ही प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है फोन कैटेगरी में, बट स्टिल एप्पल इज ट्राइंग टू इंश्योर दैट देयर इज प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस हैपनिंग। और जहां आपकी प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन बंद हो जाती है, जो कंपनीज नहीं कर पाती, वहां पे प्रोडक्ट डिक्लाइन में आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्या प्लान है स्टार्टअप, कि क्या प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। बहुत लोग कहते हैं यार सब कुछ पहले प्रोडक्ट में डाल दो। फर्स्ट मेक अ प्रोडक्ट विच यू आर एबल टू प्रूव पीओसी। एक बार पीओसी हो गया, ग्रोथ फेज में आ गया, तब उसमें नई चीजें डालें जिससे यू आर एबल टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। फिर जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, मान लीजिए जैसे आज की तारीख में हम इंडिया में बेच रहे हैं, अगर एक्सटेंड करना है उसका लाइफ साइकिल, तो हम कहते हैं चलो अब मिडिल ईस्ट चलते हैं, अब साउथ ईस्ट चलते हैं, कहाँ जा सकते हैं नए। प्रमोटिंग फ्रीक्वेंट यूज। प्रमोटिंग फ्रीक्वेंट यूज में क्या होता है कि कंपनीज लाइक जो सर्विस कंपनीज हैं, या जो कंपनीज हु आर मोर connecting directly with consumers, for them creating stickiness with their product, creating stickiness with the service becomes, the more the consumers use your products, the better it is. That is why आपने उबर यूज करी, आज वापस आए आपने, अच्छा आज 700 रुपए का उबर का बिल था, उबर ने एक मैसेज करी, अगली उबर आप लेते हैं तो there is a 50% off, capped at 50 rupees cashback. सडनली यू से अरे यार मुझे कल जाना है तो चलो यार, फिर 50 रुपए वापस मिल रहे हैं, फिर उबर ही ले लो। सो स्टिकीनेस, प्रमोटिंग फ्रीक्वेंट यूज। देन डेवलपिंग डिफरेंट स्टेजेस यूसेजेस, कि प्रोडक्ट को आप सिर्फ how can you have multiple usages of products, and then finding new usages, keep
प्रोडक्ट के लिए नए यूसेज क्या हो सकते हैं। और फाइनली जो आज की तारीख में मेजर्ड मीडिया जिसे कहते हैं, मॉडर्न एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स अगर आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग हो तो बिलीव मी, you are able to extend and you will be able to extend your product life cycle. Let's go ahead. अब एडवांटेजेस क्या हैं? हमने तो सब बता दिया आपको, 4 फेज और इससे ये फायदा, उससे ये फायदा, आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। और व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? सो उसमें जो है बड़ी सिंपल चीजें हैं काफी, एंड as you grow bigger, product lifecycle management becomes a big issue for product companies. Big. तो सबसे पहले जो की एडवांटेजेस हैं, सेल्स फोरकास्टिंग, कि प्रोडक्ट किस साइकिल में है। अरे 10 साल पुराना प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली मेच्योरिटी फेज पे है या डिक्लाइन पे है, तो उसमें मैं क्या फोरकास्ट करूंगा, कितने नंबर्स, कैसे बिक्री होगी, क्या मैं प्रमोशन करूंगा, उससे फर्क पड़ जाता है। प्रेडिक्टिव टूल्स होते हैं, प्लानिंग टूल्स होते हैं, कंट्रोलिंग टूल्स होते हैं, और जो मार्केट प्रोग्राम्स होते हैं उसको मार्केट प्रोग्राम्स मतलब जो गो टू मार्केट पे आप पैसा खर्च करोगे, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट पे, वो सब अलग हो जाता है। ग्रोथ फेज पे अलग होगा, मेच्योरिटी फेज पे अलग होगा, डिक्लाइनिंग फेज पे अलग होगा प्रोग्राम। जो आपकी नए प्रोडक्ट्स या नया मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं उससे प्लानिंग आप अच्छी कर सकते हैं, या जो कंपैरिजन है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का वो भी आप देख सकते हो इससे। तो इट lot of advantages once you manage the product life cycle very well. Next slide. अब एक थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत मैंने बात करी कि भाई मार्केटिंग 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 टू सपोर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? तो सबसे पहला हुआ कि इम्प्रूव प्रोडक्ट इन फंक्शनल सेंस। अब ये हो जाता है कि, एंड दिस इज वेयर कंज्यूमर फीडबैक कम्स इनटू प्ले, कि भाई ये बटन यहाँ पे नहीं यहाँ पे हो। मैं बहुत सारी सोच आ जाती है इसमें once the consumer start giving you feedback, and that is why lot of market research goes into early product development। कि भाई आपको मान लीजिए मैंने पहले 100 कंज्यूमर्स को फ्री दे दिया कि यार आप ट्राई करो इस प्रोडक्ट एंड गिव मी फीडबैक, या तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है या कुछ भी है, तो मैं कैसे, हाउ डू आई इंश्योर दैट आई गेट गुड सॉलिड फीडबैक सो दैट आई कैन इम्प्रूव। तो फंक्शनल सेंस में प्रोडक्ट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है उसमें। अगेन आपकी रेटिंग क्या है, जो आपके वेबसाइट पे या और गूगल पे या और जो वेबसाइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। सो यू आर एबल टू फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सी कि हम क्या चीज़ ठीक कर सकते हैं। फिर आ गया रिव्यू द मार्केट, जो अपन मार्केटिंग और प्रोडक्शन प्रोग्राम्स हैं उसको हम एकदम मैच कर सकते हैं, क्योंकि बेसिस द मार्केटिंग कहता है कि अच्छा अगर मैं ये प्रोग्राम्स और ये प्रमोशनल एक्टिविटी करूंगा तो मेरी जो बिक्री है वो, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1000 प्रोडक्ट की जगह 1200 प्रोडक्ट हो जाएगी, तो मैं प्रोडक्शन टीम मेरी अकॉर्डिंगली 1200 प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करेगी। सो इस तरह एक थोड़ा सा तालमेल बहुत अच्छा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनीज के लिए, प्लानिंग के लिए। फिर एक कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स हैं आपके, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। एक जो होता है जो आजकल एफएमसीजी कंपनीज हैव टू रिजॉर्ट, स्पेशली जो प्रोडक्ट्स एकदम फुल मैच्योरिटी पे हैं, पैकेजिंग। पैकेजिंग का खेल जो है ना इतना इम्पोर्टेंट हो गया और इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो गया कि इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ द प्रोडक्ट इज पैकेज्ड। और अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी को देख लीजिए, सबसे पहले जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, तो 1 or 2 influencers will do an unboxing of the product, basically showing the consumers how good the packaging is, how good and how easy it is to unbox the product. All these are marketing strategies. अब वो अच्छी चीज है तो लोग कहते हैं अरे हाँ यार ये तो बहुत अच्छे से पैकेज्ड है, अच्छे से अनबॉक्सिंग इज वेरी इजी। एंड देन ऑब्वियसली the R&D efforts
which is linked to अगर आपके पास बहुत successful चीज आ गई हाथ में, then how much more R&D you can put in to ensure that it is continues to be ahead of the game. Ultimately, it's all about how good you are and how good is your product and how well it is accepted by the consumers that you are ahead of the game. And then sales incentive schemes जो हैं, जो dealer support पे या distributor support पे या any grow to market plan पे आप यूज कर सकते हैं. सो दीज आर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जिससे आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और थोड़ा लंबा कर सकते हैं. अब एक आपको एक और एस्पेक्ट लेके चल रहा हूं और उसके बाद दो एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, और तीसरा जो मैंने शुरू में कहा था, जो इवेंट कल हुआ ग्लोबल वर्ल्ड में. तो सबसे पहले तो व्हाट टू वॉच आउट फॉर. अब नॉर्मली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जब हम एनालाइज करते हैं तो तीन चीजें हमें समझनी. सबसे पहले तो जो चीज आप ला रहे हो वो नई है या पुराना. सो इट्स इज इट अ न्यू प्रोडक्ट, वेरी न्यू, नोबडी हैज इट, और it's an old product and somebody else also has it. First thing you have to watch out. The second, is it a new concept or an old concept. अब प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट आप कहेंगे कि यार ये क्या डिफरेंशियल. अभी एग्जांपल्स में आपको साफ दिख जाएगा कि क्या डिफरेंशियल. थर्ड, is it easy to copy or not easy to copy. That is where how good your R&D and innovation has been. So let's look at two interesting examples. So the first example I'll talk about is Amazon Kindle. अब कुछ साल पहले ई बुक्स जो है ना, बड़ा ट्रेंड था. मैंने भी फटाफट किंडल ऑर्डर कर दिया कि भाई अरे किंडल में पढ़ेंगे, किताबें तो जरूरत नहीं, अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इतना, अब इतनी मोटी किताब, भारी किताब कौन लेके चले शोल्डर पे. एक किंडल डाल दिया, उसमें 600-700 किताबें हैं, whichever book I want to read, I'll read. So it was a very simple device that allowed you to read anything that I wanted. Whether you and मतलब प्रोडक्ट वाज नॉट ऑफरिंग एनी न्यू बुक. नई बुक नहीं थी किंडल के पास. जो किताबें शेल्फ पे थी बुक शॉप में, वही उन्होंने कहा ये लो जी, दिस इज नाउ इन कंज्यूम्ड इनटू अ स्मॉल डिवाइस, इसमें पढ़ो आप. But what this product allowed you to do was read your favorite book wherever you wanted in a very new way. So क्या डिफरेंस था. अब Amazon Kindle could be considered as an old product because it was offering books with a new concept, but it was easy to copy because technology involved was not very difficult. So अगली स्लाइड में देखें कि क्या हुआ Kindle का हर्ष. अब ये गूगल ट्रेंड है, ये मैंने मतलब यू जस्ट लुक एट गूगल ट्रेंड एज टू व्हाट वाज ट्रेंडिंग विद इन गूगल विद रिस्पेक्ट टू किंडल, एंड यू सी कि वो 2007 से लेकर 2011 तक भयंकर ट्रेंड था, and then suddenly it sort of petered down. And the reason it petered down is because it was an easy to copy concept. अब एक और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पकड़ते हैं जो आजकल सबके सामने. And the next one is Netflix. Netflix, yeah. Now, Netflix is again similar product to Kindle. They didn't offer new content. उन्होंने कहा जी ये 2007 की पिक्चर है, ये लो नेटफ्लिक्स पे, 2006 की पिक्चर है, ये लो नेटफ्लिक्स पे, 2019 की पिक्चर है, ये लो नेटफ्लिक्स पे, देख लो. Right? So what Netflix initially offered was old product, movies that already existed, but with a new concept, that it was on your click. But the biggest thing was it was not easy to copy. The reason it was not easy to copy, because you needed powerful servers and contracts with film producers to watch what was already copyrighted, patented. सो उसके कारण क्या हुआ, पिछले 10 साल में नेटफ्लिक्स तो मतलब एकदम छाया हुआ. एवरी ईयर दे हैव कंटिन्यूड टू ग्रो. बट what has happened to Netflix? Now, other companies have also started Netflix like programs like Disney. Disney Plus is there. So, aajkal Disney is partnered in India with Hotstar, but either case, they are also offering content.
But when you look at Google Trends for Netflix and you see what has happened, especially in the last 2 years, it has gone through the roof. Hello, Ratish sir, am I audible? I guess there is some technical issue. Hello, Ratish sir, am I audible? Okay. I guess there is some technical issue and because of that I would like to conclude that आज हमारे सेशन में हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ समझा होगा अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में एंड दे विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट एंड फॉर दैट आई रिक्वेस्ट हमारे जितने भी सागर के स्टार्टअप्स हैं और इवन दे हैव अ आइडिया दे कैन कम टू अस इन स्पार्क इंक्यूबेशन सेंटर एंड रजिस्टर देमसेल्फ ऑल्सो. So I would like to thank all of you and thank all the viewer and thank all also thank Ratish sir for such an interesting session and for such an interesting examples. Thank you so much everybody and till we meet next, keep learning and keep in touch with Spark Incubation Center. Thank you so much. And I also thank Meenakshi Sharma. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच ललिता. आज हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया था कि हमारे प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन से लेके हमने किस तरह से हम उसे आगे लेके गए मैच्योरिटी स्टेज तक. आई गेस रतीश सर इज हियर. Yeah, Sir, am I apologies. audible? Yes, you are. No You are. worries. Sorry about that. Okay. So Netflix की बात कर रहे थे हम. So Netflix, although has seen phenomenal growth, but last year and this past year they are facing challenges because other similar products have come in. अब जो मैं बता रहा था आपको, जो एक कल सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ ग्लोबल वर्ल्ड में, वो हुआ फेसबुक का. फेसबुक this quarter reported actually a flat, and they did not and could not report growth in users. Actually, for the last 3 quarters, they've almost flattened out. So they've actually reached the top of their maturity and their peak. And because of that, Facebook shares fell significantly in the market. So much so that Mr. Zuckerberg, who's the CEO for Facebook, actually lost 30 billion in terms of his net worth because there was a significant dip. So when you look at Facebook growth, they've reached the peak. Now, what Mr. Zuckerberg just announced is that they will come up with new things to ensure that Facebook growth continues. So जो हम बात कर रहे थे ना, how do you extend the life cycle, product life cycle? अब Facebook will have to do something where people are able to stick to it and extend the life cycle. With that, if there are any questions, I am more than happy to take on. Pretty much, I think I'm at the end of my uh, okay, there First are of some all, questions that I can see. How can we track the product life cycle? Most often, Harshita, you can track the product life cycle by tracking product quantities as we are going and as you are going, and that is where a lot of data-driven approach needs to happen in the company to ensure that you are able to track product. Uh, why does a company need to know life cycle stages of its products? Great question, RJ Shah. And the reason why you need to know is because your marketing strategies and your investment strategies on the product are connected to the where the product life cycle is. If you're already reaching maturity stage, then probably you need to invest more in marketing
and accept the fact that your profitability would be lower because of your extra marketing cost to extend the product life cycle. क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और सर्विस लाइफ साइकिल सेम होता है? टेक्निकल लक्की पूछ रहे हैं, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और सर्विस लाइफ साइकिल दो अलग चीज़ें। सर्विस लाइफ साइकिल, अब मैं जो मेरी समझ सर्विस लाइफ साइकिल की उससे कंपेयर करूंगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अबाउट जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है, जो देवांशी ने शुरू में बताया कि भाई कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके वो एक स्टेज आ जाती है जब प्रोडक्ट डिक्लाइन में होता है। अब सर्विस लाइफ साइकिल जो है वो डिपेंड करता है कि सर्विसिबिलिटी क्या है प्रोडक्ट की। अब अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसमें सर्विसिबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अगर सर्विस है तो उसमें शायद उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्विसिबिलिटी की। I think those were the questions, and pretty much we are at the end of our presentation. Absolutely, it was great. Devanshi, if there are any questions that you may have, I'll be more than happy to address them. Sir, I would like to ask one question. Yes. सर, जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में सिंगल आइकन सोलो मार्केट होता है, और एक ही प्रोडक्ट के साथ एक कंपनी काम करती है, और जब उसकी मैच्योरिटी लेवल पे आती है तो क्या उस कंपनी को अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट या उसमें इम्प्रूवाइजेशन का कुछ सोचना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये सोचिए ना कि जब एप्पल ने सबसे अपना पहला आईफोन निकाला था, तो उन्होंने ऑलरेडी सोच लिया था कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है और उनकी सोच कहाँ तक जाएगी। तो उन्होंने जब एक निकाला, और हर साल एप्पल नए प्रोडक्ट निकालता है, तो ऑब्वियसली एप्पल 12, एप्पल 13, दे इम्प्रोवाइज, दे इम्प्रूव एंड दे मॉडिफाई एंड दे ऐड न्यू थिंग्स। सो अगर आप सोचोगे नहीं सिंगल प्रोडक्ट कंपनी में, अगर आप नए मॉडिफिकेशन या नए वर्जन्स नहीं लाओगे, तो डेफिनेटली योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विल स्टार्ट गेटिंग शॉर्ट, छोटा होने लगेगा। तो आपको एक्सटेंड करने के लिए या तो आप नए प्रोडक्ट लाओगे या मॉडिफिकेशन करोगे। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये काफ़ी अभी जो हम जनरेशन में हैं वो काफ़ी हाईटेक है, और ट्रेंड के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जी, अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को स्टडी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए, तो हमें किन किन पॉइंट्स का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बदलते हुए ट्रेंड को लेकर? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। अब इसमें सबसे पहले जो आपने बिल्कुल सही कहा ना, ट्रेंड्स। ट्रेंड्स कहाँ से निकल रहे हैं आजकल? दो चीज़ों से। एक तो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हो गए और एक कंज्यूमर बिहेवियर ट्रेंड्स हो गए। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब आप ऐसे सोचिए कि पिछले 18-19 महीने से लॉट ऑफ कंज्यूमर्स हैव गॉट यूज्ड टू बाइंग ऑनलाइन। तो एक ये कंज्यूमर बिहेवियर ट्रेंड हो गया। तो अगर हम वो चीज़ नहीं सोचेंगे, तो और हमारा हम यही सोचेंगे कि अरे नहीं, हम तो सिर्फ ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स में ही बेचेंगे, तो वी आर मिसिंग आउट। सिमिलरली अगर टेक्नोलॉजी आ रही है नई, जैसे 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, अब 5G आ रही है तो उससे जो स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी 4G से। और उस इम्प्रूवमेंट को अगर मैं अपने साथ नहीं लेके चलूंगा और अपने प्रोडक्ट्स में वो चीज़ और अपनी सोच में नहीं लाऊंगा, तो आई विल अगेन मिस आउट। सो ये सब चीज़ें, both technology trends and consumer behavior trends are, I would say, two important things that we should always look out for. थैंक यू सो मच रतीश सर, बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा। आपने बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ सब लोगों को समझाया, व्यूअर्स को इजी तरीके से, कि पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे होता है, क्या क्या उसका हमें क्या करना चाहिए जो वो अच्छी तरीके से मैनेज हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ स्पार्क इंक्यूबेशन सेंटर। साथ ही मैं अपने सारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज उन्होंने इतने अच्छे से ये पूरा सेशन सीखा, और मैं आशा करती हूँ कि वो इससे आज बहुत अच्छी लर्निंग लेके जाएंगे। तो थैंक यू सो मच ललिता फॉर हेल्पिंग मी हियर, एंड
साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि अगर उनके पास भी कोई बहुत अच्छा आइडिया है तो वो हमारी वेबसाइट www.sagastartuppark पे जाके अपने आइडिया को रजिस्टर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ललिता, रतीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much. Thank you for So having me. yeah, so till we meet next, you all take good care of yourself and keep learning. Thank you.